یہ زمین ہمارے خوابوں کی سرزمین، جس پر ہم سانس لیتے ہیں، اپنے وجود کے ہر ذرے کے لیے فطرت کی مرہون منت ہے۔ اور فطرت کی اسی سانس میں ایک ایسی وادی بستی ہے جو زندگی کے تسلسل کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے متنوع جنگل ایمیزون یعنی زمین کے پھیپھڑے۔ جنوبی امریکہ کے دل میں پھیلا ہوا یہ جنگل ایک ملک نہیں بلکہ ایک دنیا ہے۔ یہ دنیا 9 ممالک برازیل، پیرو، کولمبیا، وینزویلا، بولیویا، ایکواڈور، گیانا، سورینام اور فرینچ گیانا میں پھیلی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر یہ جنگل تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے، یعنی اتنا بڑا کہ پورا بر اعظم یورپ سے بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ ایمیزون کو اکثر زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگل دنیا کے لیے تقریباً 20 سے 30% آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہر درخت، ہر پتا، ہر قطرہ شبنم فضا کو صاف رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ ایمیزون کی وادی میں بہنے والا ایمیزون دریا دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دریا کی لمبائی تقریباً 6600 کلومیٹر ہے، جو اینڈیز کے پہاڑوں سے شروع ہو کر بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔ اس کے کناروں پر لاتعداد ندی نالے، دلدلی علاقے اور چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جو جنگل کو ایک زندہ، سانس لیتے ہوئے نظام میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں سال بھر نمی اور گرمی کا امتزاج رہتا ہے۔ بارشیں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ کچھ مقامات پر سالانہ 3000 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہاں نمی ان درختوں کو گھنے، سرسبز اور ہمیشہ تازہ رکھتی ہے۔ ایمیزون کا جنگل صرف درختوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک لامتناہی زنجیر ہے۔ یہاں تقریباً 390 ارب درخت پائے جاتے ہیں جن کا تعلق 16,000 اقسام سے ہے۔ یہ درخت نہ صرف خود زندہ ہیں بلکہ زمین کے ہزاروں دیگر جانداروں کو زندگی فراہم کرتے ہیں۔ یہ جنگل انسان کے لیے بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود زمین۔ یہاں صدیوں سے وہ قبائل آباد ہیں جنہوں نے جدید تہذیب سے دور رہ کر فطرت کے ساتھ زندگی اختیار کی ہے۔ ان کے لیے جنگل صرف رہائش نہیں بلکہ مذہب، ثقافت اور شناخت ہے۔ ایمیزون میں آج بھی تقریباً 400 قبائل آباد ہیں جن میں سے کچھ نے کبھی بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں کیا۔ ان کے لیے یہ جنگل ان کی خوراک، علاج، لباس اور پناہ کا واحد ذریعہ ہے۔ یہاں کا ہر درخت، ہر کیڑا، ہر پرندہ ایک کہانی سناتا ہے، اور وہ بھی زندگی کی بقا کی کہانی۔ اور یہ کہانی صرف جنگل تک محدود نہیں بلکہ پوری زمین کے مستقبل سے جڑی ہے، کیونکہ جب ایمیزون سانس لیتا ہے تو دراصل پوری انسانیت سانس لے رہی ہوتی ہے۔ سورج کی پہلی کرن جب ایمیزون کے گھنے درختوں کی چھتری کو چیرتی ہے تو اس روشنی کے نیچے ایک زندہ دنیا بیدار ہوتی ہے۔ یہ دنیا اتنی وسیع، اتنی رنگین اور اتنی متنوع ہے کہ اسے زمین کی سب سے بڑی حیاتیاتی گہوارہ کہا جا سکتا ہے۔ ایمیزون کے جنگلات میں موجود حیاتیاتی تنوع زمین کے کسی بھی دوسرے خطے سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہاں تقریباً 30 لاکھ سے زائد انواع یعنی پودے، جانور، پرندے، حشرات اور آبی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ یہ تعداد پوری دنیا کے کل حیاتیاتی تنوع کا تقریباً 10% بنتی ہے۔ یہاں ہر قدم پر زندگی کا ایک نیا روپ دکھائی دیتا ہے۔ درختوں کی بلندی پر رنگ برنگے اڑتے پرندے، میکاؤ کی شوخ رنگت، ٹوکان کی بڑی چونچ اور ہمنگ برڈ کے نازک پروں کی لرزش، یہ سب فطرت کے شاہکار ہیں۔ درختوں کے نیچے گھنے پتوں کے درمیان سلوتھ نامی جانور اپنی سست چال سے درختوں کی شاخوں پر جھولتا ہے۔ اس کی زندگی اتنی پرسکون ہے کہ وہ ایک دن میں بمشکل چند میٹر ہی آگے بڑھتا ہے۔ یہی سستی دراصل اس کی بقا کی ضمانت ہے، کیونکہ حرکت کم ہونے سے شکاریوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ ایمیزون کے دریا میں بہتی ہوئی زندگی بھی حیران کن ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور مخلوق ایک ڈالفن، ایک نایاب میٹھے پانی کا ڈالفن جو اپنی گلابی رنگت کے باعث دنیا بھر میں منفرد ہے۔ مقامی لوگ اسے بولو کہتے ہیں اور اسے جھیلوں کی روح سمجھتے ہیں۔ اسی دریا میں چھپ کر رہتا ہے ایناکونڈا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا سانپ۔
निजाम ये 20 से 30 फीट तक लंबा हो सकता है और इतना ताकतवर कि हल्की सी हरकत से बड़े जानवरों को भी दबोच लिया। अमेज़न के शिकारी इसे दरियाई देव कहते हैं। जंगल की जमीन पर चले तो नजर आता है जैगुआर, जनूबी अमेरिका का सबसे ताकतवर शिकारी, जिसका हर कदम खामोश मगर मुखलिक होता है। उसकी मौजूदगी इस पूरे माहौलियाती निजाम के तवाजुन की अलामत है। अमेज़न की हयातियाती दौलत सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं, यहाँ मौजूद पौधों की अक़साम भी इंसानी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया की तकरीबन 25% अद्वियात की बुनियाद वो जड़ी बूटियां हैं जो अमेज़न के जंगलात से दरियाफ्त हुई। कैंसर, मलेरिया, दिल के अमराज, इन सब के इलाज की जड़ें इसी जंगल की मट्टी में पेवस्त हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेज़न में अब भी हजारों ऐसी नबातात मौजूद हैं जिनका साइंसी मुतालिया नहीं किया गया। मुमकिन है कि इन्हीं में इंसानी बीमारियों के मुस्तकबिल के इलाज पोशीदा हो। ये जंगल एक इंतहाई पेचीदा मगर मरबूत निजाम है, जहाँ दरख्त फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। बारिश का पानी दरियाओं में बहता है और नदी नालों के जरिए पूरे खित्ते में नमी बरकरार रखता है। यही कुदरती हमआहंगी जमीन के माहौलियाती तवाजुन को कायम रखती है। अगर ये तवाजुन बिगड़ जाए तो सिर्फ अमेज़न नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होती है। यही वजह है कि अमेज़न को जमीन का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हर धड़कन जिंदगी की एक अलामत है। ये एक ऐसा नाजुक निजाम है जहाँ हर पत्ता, हर कीड़ा, हर कतरा एक दूसरे पर इन्हिसार करता है। लेकिन पिछली चंद सदियों में इंसान ने अपनी तरक्की की दौड़ में इस तवाजुन को खतरे में डाल दिया है। अमेज़न के जंगलात को आज सबसे बड़ा खतरा है जंगलात की कटाई। हर साल अंदाजन 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा इलाका सफाई जमीन से मिटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर मिनट में तकरीबन 3 फुटबॉल मैदान जितना जंगल गायब हो रहा है। इस कटाई की बुनियादी वजूहात में ज़रई जमीनों का फैलाव, मवेशियों के चरने के लिए चरागाहों की तैयारी, गैर कानूनी लकड़ी की तिजारत और मादनियात की तलाश। जंगल के बड़े हिस्से को जलाया जाता है ताकि जमीन साफ हो जाए। ये आग न सिर्फ दरख्तों को जला देती है बल्कि फिजा में लाखों टन कार्बन भी छोड़ती है। ये वही कार्बन है जो जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे यानी आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है। अमेज़न के दरख्त जमीन की फिजा से कार्बन जज्ब करते हैं, मगर यही दरख्त काटे या जलाए जाते हैं तो वो कार्बन दोबारा फिजा में शामिल हो जाता है। यूं अमेज़न जो कभी जमीन को सांस देता था, आहिस्ता आहिस्ता खुद घुटने टेकने लगा है। मादनियात की तलाश और सोना निकालने की गैर कानूनी सरगर्मियां अमेज़न के दरियाओं को जहरीला बना रही हैं। कानकुनी में इस्तेमाल होने वाला पारा पानी में शामिल होकर माहीगीरी और इंसानी सेहत दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है। दूसरी तरफ सड़कों, डैमों और शहरों की तामीर इन इलाकों में हो रही है जो कभी खालिस कुदरती थे। इस तरक्की ने हजारों इकसाम के जानवरों के मस्कन तबाह कर दिए हैं। कई परिंदे, दरिंदे और आबी जानदार अब नापैद होने के खतरे से दोचार हैं। सदियों से जो लोग फितरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजार रहे थे, अब वो अपने घरों से बेदखल किए जा रहे हैं। जंगल की जमीन तजारती मंसूबों के नाम पर छीनी जा रही है। कई कबाइल अपनी जबान, सकाफत और रिवायात के साथ मातूम हो रहे हैं। अमेज़न की ये कहानी सिर्फ खित्ते की नहीं बल्कि इंसानी लालच और फितरत की बका की जंग की कहानी है। गुज़श्ता चंद दहाइयों में सैटेलाइट तस्वीर ने दिखाया है कि अमेज़न का रकबा तेजी से सिकुड़ रहा है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगली सदी के वस्त तक अमेज़न का तकरीबन 40% हिस्सा खत्म हो सकता है। Well, the destruction of the Amazon is getting so bad. माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर ये जंगल एक खास हद से ज्यादा तबाह हो गया तो ये अपनी नमी बरकरार नहीं रख सकेगा और रफ्ता रफ्ता खुश्क मैदानों में बदल जाएगा। यानी वो निजाम जो जमीन को ऑक्सीजन देता है खुद दम तोड़ देगा। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अब भी वक्त है, क्योंकि जहाँ नुकसान हुआ है वहीं इंसान ने हिफाजत की तहरीकें भी शुरू की हैं। अमेज़न के दरख्त सिर्फ साया या खूबसूरती नहीं देते, ये जमीन के लिए सांस लेने का जरिया है। यहाँ हर पत्ता फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और ऑक्सीजन खारिज करता है। यही अमल जमीन के दर्जा हरारत को काबू में रखता है। माहिरीन के मुताबिक अमेज़न के जंगलात हर साल तकरीबन 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। अगर ये जंगल ना हो तो जमीन की फिजा में ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कई गुना बढ़ जाए और आलमी दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाए।
अमेज़न न सिर्फ फिजा को साफ करता है बल्कि जमीन के पानी के चक्कर में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। यहाँ के दरख्त अपने पत्तों के जरिए बुखारात खारिज करते हैं जो बादल बनाते हैं और यही बादल बारिश की सूरत में पूरे जनूबी अमेरिका में जिंदगी बखेर देते हैं। तहकीकात के मुताबिक अमेज़न के दरख्त रोजाना तकरीबन 20 अरब टन पानी फिजा में छोड़ते हैं। ये बुखारात बादल बनकर हजारों मील दूर एंडीज के पहाड़ों, ब्राजील के मैदानों और हत्ता के बहरे ओकियानूस तक के मौसम को मुतासिर करते हैं। लेकिन जब जंगलात काट दिए जाते हैं तो ये कुदरती अमल रुक जाता है, बादल कम बनते हैं, बारिशों का निजाम बिगड़ जाता है और जमीन की नमी कम होने लगती है। माहिरीन इसे अमेज़न का खुश्क होना, अमेज़न ड्राइंग कहते हैं। एक ऐसा मरहला जब जंगल अपना कुदरती तवाज़ुन खो देता है। ये तब्दीली सिर्फ ब्राजील या पेरू तक महदूद नहीं रहती, इसके असरात आलमी सतह पर महसूस होते हैं। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के मौसमों में बेतरतीबी, खुश्क साली और तूफानों की शिद्दत में इजाफा, ये सब इसी सिलसिले का हिस्सा है। अमेज़न का मौसमी असर एक हैरान कुन हकीकत है। ये जंगल अपने बादल खुद बनाता है, यानी यहाँ के दरख्तों के बुखारात से पैदा होने वाली नमी खुद अमेज़न पर बारिश बनकर वापस आती है। यूं ये निजाम एक खुदकार दायरे में चलता है जहाँ फितरत खुद को जिंदा रखती है। लेकिन जब इंसान इस दायरे को तोड़ देता है तो फितरत के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वो है गर्मी में इजाफा, बारिशों की बेकायदगी और तूफानों की शिद्दत। ये सब इसी रद्द-ए-अमल के मज़ाहिर हैं। अमेज़न की तबाही दरअसल जमीन की हयातियाती सांस की बंदिश है। ये सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं, ये इंसानी बका का सवाल है। अगर अमेज़न मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया तो आलमी दर्जाए हरारत में तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा मुमकिन है। ये इजाफा छोटा नहीं, ये बर्फानी खित्तों के पिघलने, समंदरी सतह बुलंद होने और लाखों जानदारों के मस्कन खत्म होने का सबब बन सकता है। लेकिन फितरत के पास शिफा की सलाहियत भी है। अगर हम दरख्त लगाएं, आग न लगाएं और जमीन को वक्त दें तो ये जंगल खुद को दोबारा जिंदा कर सकता है। अमेज़न हमें ये सबक देता है कि जमीन एक जिंदा वजूद है और अगर हम इसके साथ हम आहंग रहे तो ये हमेशा हमें सांस, जिंदगी और तवाज़ुन अता करेगा। जब इंसान ने महसूस किया कि तरक्की की रफ्तार फितरत के तवाज़ुन को बिगाड़ रही है तो एक नया एहसास बेदार हुआ। यही एहसास आज दुनिया भर में अमेज़न के दिफा की बुनियाद बन चुका है। अमेज़न के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतें, साइंसदान और मकामी बरादरियां यकजा हो रही हैं। ब्राजील जो इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, उसने हालिया दहाइयों में कई इक़दामात किए हैं। 2004 में ब्राजील ने अमेज़न कंट्रोल प्लान मुतारिफ कराया जिसका मकसद गैर कानूनी दरख्तों की कटाई रोकना, माहौलियाती निगरानी बढ़ाना और मुकामी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ी मंसूबों में शामिल करना था। जदीद टेक्नोलॉजी ने इस मुहिम को नया रुख दिया है। आज अमेज़न के दरख्तों की निगरानी सैटेलाइट और मसनूई ज़हानत यानी AI की मदद से की जा रही है। हर दिन खला से ली गई तस्वीर के जरिए इन इलाकों की निशानदही की जाती है जहां गैर कानूनी कटाई हो रही है। इसके अलावा आलमी इदारे जैसे यूनेस्को, WWF, ग्रीन पीस और अमेज़न वॉच इस जंगल के तहफ़्फ़ुज़ में सरगर्म है। ये तंजीमें मकामी कबाइल को तरबियत देती हैं, उन्हें मुतबादिल रोजगार फराहम करती हैं ताकि वो दरख्त काटने की बजाय जंगल की हिफाजत से कमाई कर सके। अमेज़न के मकामी लोग जो कभी फितरत के मुहाफिज थे अब दोबारा अपने किरदार को समझ रहे हैं। कई कबाइल अपनी जमीनों पर कुदरती महफूज इलाके बना रहे हैं। ये इलाके हुकूमत के कवानीन से आजाद है लेकिन फितरत के उसूलों से बंधे हुए हैं। मकामी खवातीन अद्वियाती पौधों से कुदरती मसनूआत तैयार करती हैं, मर्द शहद की मक्खियों की परवरिश करते हैं और बच्चे स्कूलों में माहौलियाती तालीम हासिल करते हैं। यूं एक नया अमेज़न जन्म ले रहा है जहां तरक्की और कुदरत एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कोशिशें जारी हैं। यूरोप और एशिया के कई ममालिक ने कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत जो कंपनियां माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें जंगलात की बहाली के मंसूबों में सरमाया लगाना पड़ता है। यूं उनकी सनतों से पैदा होने वाला कार्बन दरख्तों की शजरकारी से मुतवाजन किया जाता है। जंगलात की बहाली के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए बीज फिजा से बखेरे जाते हैं जो चंद हफ्तों में नई कोपलों में तब्दील हो जाते हैं। ये जदीद तरीका हजारों हेक्टेयर जमीन को दोबारा सरसब्ज बनाने में मदद दे रहा है। तहफ़्फ़ुज़ का एक और अहम पहलू है तालीम और शऊर। दुनिया भर के स्कूलों और मीडिया में अमेज़न के बारे में आगाही फैलाई जा रही है। बच्चे सीख रहे हैं कि जंगल सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का जामिन है। नई नस्ल के लिए ये एक सबक है कि तरक्की तभी पायदार है जब फितरत इसका हिस्सा हो। माहिरीन कहते हैं कि अगर आलमी सतह पर दरख्तों की कटाई आदि भी कर दी जाए तो अमेज़न अगले 50 सालों में खुद को बहाल कर सकता
लगता है। ये वो उम्मीद है जो हमें हारने नहीं देती। अमेज़न के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद सिर्फ साइंस या हुकूमत की नहीं, बल्कि ये पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने ज़मीन के फेफड़ों को बचा लिया तो हमने अपनी सांसों को महफूज कर लिया।